And meanwhile, we saw the Congress out on the streets today. Congress members in Delhi and multiple other cities in the country protested against comment made by the BJP calling Rahul Gandhi the #1 terrorist. This comment came from senior leaders of the BJP after Rahul Gandhi made comments on the Sikhs in India and their religious freedom while speaking at an event in the United States. We saw protests that panned out today in multiple cities, including Delhi, Jaipur, Hyderabad. In fact, Congress's Ajay Maken, MP, has filed a formal FIR with the Delhi Tughlaq Road police station, where he's elaborated on the allegations against the senior BJP leaders, claiming that they called Rahul Gandhi the #1 terrorist. There are threats that Rahul Gandhi is receiving. There's an assassination bid that was extensively written in that FIR letter given to the police, asking for the BJP leaders to be pulled up and legal action should be taken. This is the demand of the Congress party. Congress cadre, they're staging huge protests at both the Congress headquarters and in front of the BJP headquarters in Delhi. We saw similar situations in Jaipur as well as in Hyderabad. We're looking at the India bloc allies also backing up Rahul Gandhi on this. Shiv Sena, UBT, joining in the criticism against the BJP, says that the Saffron clan, the BJP, is poisoning minds of the country. Despite the backlash, Union Minister Ravneet Singh Bittu, who made that comment calling Rahul Gandhi a terrorist, has refused to retract his comments, saying Congress threatens those who exposes the Gandhis. Remember, this mega controversy has stemmed after Rahul Gandhi's remarks that he made on the Sikhs, saying that the Sikhs in India do not have the kind of religious freedom that they desire to have. They're worried if they have to wear the turban or the kada or freely go to the Gurudwara or not. Speaking extensively of religious freedom in India, this is what he was quoted as saying. Hundreds of the Congress protesters are reaching towards the headquarters of the BJP, but right now you can see police have placed barricades here and they are announcing that there is a 163 BNS, so nobody is allowed to go beyond this barricade. And they also urging to these protesting congressmen and women that they should not go beyond this and the protest should be in peace. But right now you can see it's raining in Delhi. Hundreds of the Congress workers are protesting against the remark which had given by a number of BJP leaders, and they also saying that the BJP is not condemning all these statements and not taking any official stand on this, and it is due to Rahul Gandhi is raising voices in the parliament, especially for those who are underprivileged and those who are belongs to SC, ST and OBCs. राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को उनके परिवार में दो लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुम्मक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका उमक जो दे रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है, उनके एक विधायक और भी कुछ लोग हैं, सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। इस देश के लोकतंत्र में
ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है, और हो गया है, पुतिन ने कर दिया है। और भी देशों में हो सकता है जहां तानाशाही है, जहां लोकतंत्र नहीं है। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब, ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हक दिया है आरक्षण का, वो निकालने की भाषा राहुल गांधी कर रहे। ये एक ही चीज के लिए, उसको माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को प्लीज करना है। माइनॉरिटी के अपीजमेंट के लिए जो 70-80% जो बहुजन समाज है, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, उसका आरक्षण निकालने की मंशा उन्होंने जाहिर की है। So here's what Rahul Gandhi said about the Sikhs in India that's triggered this controversy. Let's listen in. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And here's what the BJP Neta said while speaking about Rahul Gandhi, calling him the #1 terrorist. मैंने चैलेंज किया ऊपर में स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोल के भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा कोई पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होकर कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख हैं भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। राहुल गांधी खुद देश के #1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इन परिवार ने, गांधी फैमिली नहीं, पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए। इन गांधी फैमिली के कारण हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी। गांधी फैमिली का सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेट नहीं भरा, जो और सिखों को छेड़ रहे हैं अब। और अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूँ फिर? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूंगा। राहुल गांधी इस देश का #1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये #1 आतंकवादी। राहुल गांधी की जो आज के दिन में भोली भाषा है, उनका मिलना जुलना है। वो जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आतंकवादियों के साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे और तरीके।